This is speaking. Anyone is speaking or what? Who need to present today? Who is the first one to present? I'm Aditi. Start, Aditi. Unmute yourself. Can't hear you anything. Good morning, ma'am, and my dear friends. I, Aditi Kumar, on behalf of my group members, to presenting our presentation on the topic Starbucks and the habit of success when willpower become automatic. These are my group members: Aditi Kumari, Kriti, and Amrit Jamia. He was absent. Amrit Jamia, he was absent today. He is not well. Travis Leach. The first time Travis Leach saw his father overdose, he was 9 years old. His family had just moved into a small apartment at the end of the hallway. Travis had parents who were functional drug addicts, had trouble controlling his anger and could not hold down jobs. Got a job at Starbucks and completely turned life around. Starbucks. One day, a regular customer at Hollywood movie who did not gotten to know Travis a little bit suggested he think about working at Starbucks. We are opening a new store on Front Washington, and I am going to be an assistant manager. The man said, who should apply? A month later, Travis was a barista on the morning shift. That was a 6 year ago. Today at 25, Travis is the manager of 2 Starbucks, where he oversees 14 employees and is responsible for revenues exceeding $2 million per year. His salary is $44,000 and he was 401 crore and no debt. He's never late to work. Willpower more important than other factors. Marshmallow study children who could resist the marshmallow to get double treats later were more successful as adults. Willpower can become an automatic habit. It is also debatable. Marvin's study of a ball of cookies and ball of radishes. Australian 2006 study building willpower in one area, working out and money management spilled over into other area. This is more important reason for signing kids for scored our piano. The practice builds the willpower muscles for other things. 1992, British physiologists worked with a group of lower income elderly people who all had knee or hip replacement. The recovery from the surgery is very painful. Moving hurts a lot, but exercise must be started almost immediately, so flexibility can be retained. The study's participants were given a document that included additional pages where they could write down specific action steps and goals for a certain week. And further slide will be explained by Akriti. Thank you so much, Aditi, for giving me the opportunity to explain the further presentation. So the patients who wrote the plans would write out very mundane details about this, meant they were anticipating the moments of pains and planning for them in advance. The researchers saw that many of the plans had something in common. They focused on how patients would handle the specific moment of anticipated pain. The man who exercised, for instance, knew that each time he stood up from the couch would increase his pain, so he wrote out a plan for dealing with it.
Starbucks eventually incorporated this idea into their training programs. Now they have employees write out plans for how to deal with stressful situations. Travis' manager gave him a booklet and said to write down the unpleasant situation, write out a plan for responding. The manager introduced a method called latte method. In this, they listen to customers, acknowledge their complaint, take action by solving the problem, and at last they used to thank them. He said to Travis that write down a plan that you will deal with an angry customer. We will use a latte method, he said. Throughout the training manuals are dozens of blank pages where employees can write out plans that anticipate how they react to inflectious points. Then they practice those plans again and again until it becomes automatic. Aditi, can you please take me to the next slide? This is how a willpower becomes a habit, by choosing a certain behavior ahead of time and then following that routine when an inflection point arrives. When the Scottish patient filled out their booklets or Travis studied on latte method, they decided ahead of time and how to react to a cue, a painful muscle or an angry customer. When the cue arrived, the routine occurred. Another incredibly important aspect is autonomy. Much of willpower comes from the feeling that you are in control of your life, which means you have the right to control your life in a certain way and how you want to lead it. Researchers had noticed that some people like Travis were able to create willpower habits relatively easily than others, however, struggled no matter how much training and support were received. Aditi, please change the slide. Mark Murevan, who was by then a professor at the University of Albany, set up a new experiment. He put undergraduates into a room that contained a plate of warm and fresh cookies and asked them to ignore the treat. It was to measure the ability to resist temptations. Half the participants were treated kindly and the other half were treated rudely. The students from both the groups had to ignore warm cookies for 5 minutes after the researcher left the room. The researcher came back in the room and said to look at the computer monitor. The participants were asked to hit the space bar every time they saw a 6 followed by a 4. Students who were treated kindly well on the computer test and students who had not treated well kindly, on the other hand, did terribly. They forgot to hit the space bar. The group who was treated well felt they had a sense of control over the experience, so their willpower muscle wasn't depleted so fast. In 2010 study, manufacturing in Ohio let employees design other uniforms. Control scheduling led to 20% increase in productivity within 2 months. Giving employees a sense of control improved how much self-discipline they brought to their job. Later on, his mother died because of some infection in her bloodstream, and a week later, his father also died on the anniversary of his death. Every year, this Travis wakes up early, takes on extra long shower, takes on his breakfast, plans out his day in a careful detail, and then drives to work. He always arrives on time. Aditi, please change the slide. Conclusion: behavioral change is not an easy thing to achieve, but the case can be perceived differently. Despite the fact that he failed to gain the proper teachings from parents and close family members, his incorporation into Starbucks adequately helped in changing his character and attitude. By maintaining a positive attitude and habit, he was able to become the manager of the 2 Starbucks. On the other hand, for any business to succeed, there are different problems which are faced in the course of production, and it means when the willpower of the staff is high, then the bad moments can be well handled. In Leeds' case, we found a foundation that demonstrates the ability to grow and succeed depends on the inner drive and the perception of making something better. Thus, irrespective of the condition, proper planning and the inner drive are the major components which guarantee the success of any business venture. Thank you so much. You all have missed many things in this chapter. Yes, ma'am. You all have missed many things in this chapter, like research of Cookies and Redis, which Yes, had to prove that willpower is not a skill, it is a muscle that you haven't included. Then the story of a Sculge. Okay,
That was also not been included in this. Right? Then money management, how one can do money management. This also you haven't included. And I asked to include all the research portion, at least you have to include. 5 phases का chapter है. इतना जल्दी भाग गए सारा कुछ छोड़ के. Next आपने ट्रेविस के बारे में describe किया, but how it was life changing for him when he joined Starbucks. Aditi, turn on your camera first. How it was life changing for Travis when he joined Starbucks. Unmute first. वो तो कंपनी का मैनेजर बन गया था, उसके बाद उसके बहुत सारे लोग. How? Before joining Starbucks, he was not capable to even do high school. He was not capable in McDonald's. He was been fired for insubordination. Then what happened that he became so much successful person when he joined Starbucks? स्लाइड बनाना, प्रेजेंटेशन बनाने का मतलब क्या है? ठीक है, आपने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया, बट आप एक्सप्लेन तो कर सकते हैं. Yes, Akriti. Ma'am, he worked upon his behavior and attitude. He worked or Starbucks gave training. Starbucks manager provided such strategies to the employees so Yes. that their behavior and attitude changed. So Starbucks is said as the largest educational institution. I think how much hour they gave training to each and every employee when they joined Starbucks. After that, they were provided mentorship. Yes, they were provided a certain booklet to study. And then they were given a place to work. Then they start working. है ना, Starbucks में ज्वाइन करने के बाद पहले सारे लोगों से ट्रेनिंग करवाया जाता था, कैसे बिहेव करना है, वो सबकी ट्रेनिंग होती थी. मेंटरशिप करवाया जाता था, एक मेंटोर होता था आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो हैंडल करने के लिए. उसके बाद लोग ज्वाइन करते हैं. एंग्री कस्टमर से कैसे डील करना था वो भी राइट डाउन करना होता था बुकलेट में. कैसे डील करना है उसके लिए एक एक्रोनिम बताया गया था, जो लैटे आपने डिस्कशन भी किया. तो लैटे क्या है? What is the full form of latte? Anyone can answer, Aditi or Akriti? Starbucks में latte method use किया जाता है. What is this latte? LATTE. Rest all, why your cameras are off? यही 3 के लिए क्लास है क्या? सोनल और अदिति और आकृति के लिए. बाकी लोग को नहीं करना है तो छोड़ दीजिए क्लास. कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हैं? Getting my voice? Yes, ma'am. We can getting your voice. Ma'am, listen, acknowledge problem, take action to solve it. ठीक है, रेटिंग तो दे दिए, लेकिन मतलब क्या है उसका? वो एक्सप्लेन किया था स्टारबक्स की कैसे हैपन हो, मतलब कुछ कैसे हो सकता है वो स्टारबक्स. लैटी का मतलब जब Starbucks eventually incorporated this idea into other training programs.
है? लैटे ऐसा एक्रोनिम है जो ये लोग यूज करते हैं जब कोई एंग्री कस्टमर आता है, कोई भी गुस्सा करते हुए आता है, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। तो वही उसमें बताया गया है, एल इज टू लिसन। पहले कस्टमर आएंगे तो पहले आपको पोलाइटली पहले सुनना है। आपको भी बहस, जनरली हम लोगों का क्या टेंडेंसी होता है, कोई अगर चिल्लाते हुए सामने आएगा तो आप भी एकदम टूट पड़ेंगे। जनरल टेंडेंसी यही है अगर हम लोगों को नहीं आता वाता है तो। जो भी लेमैन होंगे वो मतलब नेचुरल इमोशन है। कोई चिल्लाते हुए आया तो अरे तुम मेरे से कम, हम तुमसे थोड़ी कम ताकतवर है, हमें चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दिस हैपेंस, यस। बट वहां पे बताया जाता है जनरली कि हम लोग इस तरीके के कस्टमर आते हैं तो कैसे डील करते हैं। तो एल से लिसन होता है, पहले हम सुनेंगे। ए से एक्नॉलेज होता है, यानी हम पहले उसके बाद समझेंगे, ठीक है। उसके बाद टी इज टू टेक एक्शन, जो भी उसका प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए बोला जा रहा है कि आप गलत ड्रिंक हमको दे दिए, ठीक है। तो पहले हम सुन लिए कि ठीक है, उसको समझाए। फिर टेक एक्शन मतलब क्या, जो है ड्रिंक उसको हम रिप्लेस करके दिए, राइट। और उसके बाद लास्ट में, लास्ट टी टेक एक्शन के बाद मैम थैंकिंग। थैंकिंग, और फिर लास्ट में एक और ई है। लास्ट में एक और ई है, उसका क्या मतलब है? अदिति अभी तो पढ़े आप। Explain why it happened. एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंड। तो लास्ट में वही एक्सप्लेन करना होता है कि क्यों ऐसा हुआ, आप उसको बताइए। क्या प्रॉब्लम हुआ आप उसको बताइए, यानी पहले सॉल्व करिए, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करें, ठीक है। अगर शुरू में ही एक्सप्लेन करने लगेंगे ये हो गया, ये हो गया, तो ऑब्वियसली वो अभी उसका दिमागी स्तर वैसा नहीं है जो आपकी बातों को सुनेगा वो, ठीक है। इसलिए लैटे मेथड के थ्रू हम कस्टमर को डील करेंगे, ठीक है। मेन तो इम्पोर्टेंट सा पॉइंट यही है ना, फिर मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाता है बहुत का। तो यहाँ पे कैसे दिखाएगा कि कितने कैसे लोग मनी मैनेजमेंट कर पाए और कौन से ग्रुप के लोग या कैसे लोग मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाए। मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। मैक्सिमम लोग हॉस्टल में रहते होंगे, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली हैं, इफरात पैसा तो किसी के पास है नहीं, तो वो मैनेजमेंट आना चाहिए। वो भी मिस किया है आप लोगों ने, ठीक है। तो इतना भी क्रिस्प नहीं कर दीजिए जो कि इम्पोर्टेंट चीज मिस हो जाए। और आकृति, इट वाज वेरी मच लाइक रीडिंग। लग रहा था कहीं सामने से आप इतना पूरा पेस में बोल रहे थे, इतना स्पीड में बोल रहे थे ना कि कुछ कैच ही नहीं हो पा रहा था। और ही वॉज एब्सेंट टुडे, जब आज है तो वॉज कैसे लगेगा दीदी? योर थर्ड ग्रुप Is मेंबर। is होगी। ये वही चीज है जो मैंने बताया, वो आप इंक्लूड करिए। स्टारबक्स कैसे चेंजिंग था उसके लाइफ में, ट्रेविस के लाइफ में, वो इंक्लूड करिए। कुकीज और रेडिस का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, कि विल पावर क्या हम डेवलप कर सकते हैं, ये सारा चीज उससे पता चलेगी। आप लोगों के लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। कुकीज और रेडिस में क्या क्या एक्सपेरिमेंट था, हम एक ग्रुप को इग्नोर करना था कुकीज, एक ग्रुप को इग्नोर करना था रेडिस, ठीक है। और जिस ग्रुप को रेडिस जिस ग्रुप ने इग्नोर किया, उसका मतलब उसकी विल पावर को बेसिकली चेक करने के लिए इवन दोनों ग्रुप को चेक किया गया था। बाद में एक और पजल दिया गया था, रिमेम्बर दिस? मार्क मॉर्गन्स रिसर्च किया था मैम। हाँ, तो वो कहाँ है, क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट? पढ़े तो बताइए क्या था एक्सपेरिमेंट। One group was told politely and told they can they नहीं, could. वो तो 6-4 वो वाला तो आप इंक्लूड किए ही है। Yes ma'am. एक ग्रुप को पोलाइटली बोला गया, एक ग्रुप को पोलाइटली नहीं बोला गया, उसके बाद टास्क दिया गया कि 6 के बाद 4 अगर फॉलो होगा तो आपको स्पेस बार हिट करना है। Yes वो तो ma'am. आपने इंक्लूड किया ही था। Yes इसके ma'am. अलावा एक एक्सपेरिमेंट है जो बताता है कि विल पावर इज नॉट अ स्किल, इट इज अ मसल्स। एक टाइम के बाद वो थक जाता है। विल पावर आप एक चीज में शो करेंगे, दूसरे चीज में क्या पता नहीं शो हो पाए। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कुकीज और रेडिस के बीच में। नो आइडिया? No ma'am. सुनिए, तो एक ग्रुप को जैसे मार्शमेलो का एक्सपेरिमेंट था वैसे ही सेम ये भी एक्सपेरिमेंट था कि एक रूम में दो ग्रुप को अलग अलग कमरे में रखा गया था, और दो कटोरे में एक कुकीज था, ठीक है, फ्रेशली कुक कुकीज, जिसमें चॉकलेट ऊज आउट हो रहा था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और एक में मूली रखा गया था। और एक ग्रुप को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको कुकीज खाना है, रेडिस नहीं छूना है, ठीक है। और दूसरे ग्रुप को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको मूली ही खाना है, कुकीज नहीं छुएंगे आप,
ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं तो आगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो किसके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, रेडिस खाने वाले के लिए या कुकीज खाने वाले के लिए? ये भी नहीं पता क्या? किसके लिए प्रॉब्लमेटिक है? कुकीज के रेडिस के लिए मैम। रेडिस खाने वाले के लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो इतना डिलीशियस कुकीज उसको छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें उसका सेल्फ कंट्रोल टेस्ट हो रहा है ना, और उसी के जस्ट बाद एक पजल दिया गया था जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था सॉल्व करना। ठीक है, तो उस ग्रुप में क्या हुआ, जो लोग कुकीज खाए वो आराम से लगभग 19 मिनट तक सॉल्व किए, और आराम से सॉल्व किए बिना मतलब बिना पेशेंस लूज किए हुए। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो रेडिस खाने वाले लोग थे वो बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो गए। वो इतना बड़बड़ाना शुरू कर दिए, कोई काम का नहीं है, ये रिसर्च कहीं कुछ नहीं ले जाने वाला है, फालतू है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, मतलब कंप्लीटली इम्पेशेंट हो गए। तो यहाँ से प्रूव होता है कि विल पावर एक जगह आप शो कर रहे हैं, क्योंकि कुकीज वाला जो खाया उसका तो विल पावर कहीं यूज ही नहीं हुआ है ना, तो वो आराम से रिलैक्स था, आराम से काम किया। लेकिन जो रेडिस खाने वाला था वो ऑलरेडी चिढ़ चुका था वो पहले वाले एक्सपेरिमेंट, जो सेकंड वाला जो पजल था वो ठीक से नहीं कर पाया, बहुत कम टाइम के लिए किया और जल्दी क्विट कर गया। तो यहाँ पे शो होता है कि विल पावर इज नॉट अ स्किल। जो हम लोग बोलते हैं ना किसी में विल पावर होता है, किसी में विल पावर नहीं होता, हम लोग जनरली ये बोलते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया था कि विल पावर एक स्किल है, फिर इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि विल पावर इज नॉट अ स्किल। ठीक है, अगर स्किल होता तो अगर हमको मंडे को ऑमलेट बनाना आता है तो हमको ट्यूसडे को भी ऑमलेट बनाना आएगा। यस, बट ऐसा विल पावर के साथ होता नहीं है कि विल पावर आज हम एक चीज में शो कर रहे हैं तो दूसरी चीज में भी हम शो करेंगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फाइनली इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि विल पावर इज अ मसल्स, इट गेट टायर्ड आफ्टर टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इट आल्सो गेट टायर्ड। ठीक है, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट था आपके लिए इम्पोर्टेंट। नीन जो ट्रांसप्लांटेशन था वो तो आप किए एक्सपेरिमेंट। फिर मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट जो आप बताए, अब उसमें क्या निकल के आया निष्कर्ष? मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कौन एक्सप्लेन करे? अदिति, आकृति, दोनों में से। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। More popular did fewer drugs. क्या More popular did fewer drugs. क्या? More popular did fewer drugs. नहीं, हिंदी में बोलिए प्लीज। ड्रग्स के बारे में निकला और एक सेट स्कोर 210 हाईएस्ट ऑन एवरेज। है क्या पहले वो एक्सपेरिमेंट है क्या? व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट? तो वो अडल्ट्स के लिए था मैम। आकृति, देखिए प्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से तैयार करना है क्योंकि बाकी बच्चे वो स्टोरी नहीं पढ़े हुए, तो उन लोगों को आपको समझाना है, उन लोगों को बताना है कि वो स्टोरी में है क्या, उस नोवेल में क्या बात हो रही है, क्या कंक्लूजन है। तो प्लीज एक चैप्टर दिया गया उसको कम से कम गो थ्रू जरूर हुई, अच्छे से गो थ्रू हुई और इस तरीके से हुई कि जो आप दूसरे को समझा पाए। जो नेक्स्ट ग्रुप प्रेजेंट करेंगे तो इंश्योर आपके पास 1 घंटा टाइम है, आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ऐसे एक्सप्लेन करिए जो दूसरे वाले को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बाकी स्टूडेंट आप एक्सप्लेन करें या फिर इस तरीके से बोलिए, ऐसा एक्सप्लेन करें कि दूसरा ग्रुप पढ़ने को मजबूर हो जाए कि आखिर देखें स्टोरी में है क्या। और लिटरली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये सारा चीज है। विल पावर का भी मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकता है। मनी मैनेजमेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है। लैटे मेथड है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे आप घर में ही रहें, लैटे मेथड यूज नहीं होगा। मम्मी चिल्ला रही है, आप भी चिल्लाना शुरू करिए, क्या होगा घर में? हाँ, नहीं हो जाएगा।
तो फिर ये हर जगह हर प्रैक्टिकल, चाहे आप घर में है, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे कॉलेज में है, ये आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, बिहेवियर भी एक एज के बाद आपको धीरे धीरे वो डेवलप करना होता है। एक होता है ना कि हम ऐसे ही हैं, बहुत का स्टेटमेंट होता है ना कि हम ऐसे ही हैं, बचपन से ऐसे ही हैं, राइट। तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, आपको डेवलप करना होता है ग्रेजुअली। तो अब आप इस एज में है कि अपने स्किल को डेवलप करिए, अपने बिहेवियर को डेवलप करिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। रही बात मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट की, वो 4 साल के बच्चे पे किया गया था अदिति, एडल्ट पे नहीं किया गया था। ठीक है, 4 साल। चिल्ड्रन पे किया गया था, हाँ, चिल्ड्रन पे किया गया था who could receive the marshmallow to get double treats were more successful as adults. जो रीडिंग करने बोला जा रहा है क्या, कि एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है? बताइए, प्लेन में एक्सप्लेन करिए। अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे रीडिंग के बाद भी? मैम उस बच्चे की हायर एजुकेशन और एवरेज एजुकेशन पे किया गया था, और उसका ड्रग्स की को कितना ले सकता है, ड्रग्स कम लेता है या बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता है। ये थोड़ा और एक ZSAT स्कोर्स हुआ था 2010 हायर ऑन एवरेज, उस पे किया गया था। बुक ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करिए, तो आपकी सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो पाएगा। पढ़ रहे हैं लेकिन जो मेन जस्ट है वो आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। वो ये बोल रहा है वहां पे कि 4 साल के बच्चे पे मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट किया गया था। कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे, लेकिन उस रूम, एक रूम में एक ही बच्चे को रखा गया था। एडल्ट आके इंस्ट्रक्शन दे के गए थे कि यहाँ प्लेट में आपके मार्शमैलो रखा हुआ है। ठीक है, अगर तुम इसको तब तक नहीं खाते हो जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक अगर नहीं खाते हो तो एज अ रिवॉर्ड आपको एक और मार्शमैलो मिलेगा। मार्शमैलो एक स्वीट डिश है, राइट। तो एक और मिलेगा, और अगर आप खा लेते हैं तब तो फिर यू लूज। ठीक है, तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बोल करके 4 साल के बच्चे पे ये बोल के वो एडल्ट पर्सन वहां से छोड़ जाते हैं, वो रूम खाली कर देते हैं। और टू साइड मिरर से वो रूम का टू साइड मिरर है, वो देखते रहते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। तो वहां देखा गया कि मात्र 30% बच्चा लोग ही ऐसा था जो मार्शमैलो नहीं खाया था, यानी उन लोगों में सेल्फ कंट्रोल था। ठीक है, इससे यही प्रूव हुआ ना कि इतने 30% बच्चे में सेल्फ कंट्रोल था, तो वो लोग नहीं खाया। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट वहां खत्म नहीं होता है, आगे बढ़ जब वही बच्चा लोग बड़ा हो जाता है तो ये चेक किया जाता है कि कौन सा ग्रुप अभी ज्यादा सक्सेसफुल है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल था वो बच्चे, या फिर जिसमें सेल्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं था वो बच्चे। तो देखा गया जो मार्शमैलो इग्नोर किए, जो नहीं खाए, उतने देर तक पेशेंस दिखाए रहे, वो बच्चे अभी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। पीयर प्रेशर वो बेहतर हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों में सेल्फ कंट्रोल है, रिजल्ट उनका अच्छा है। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई गलत लत नहीं लगा हुआ है, गलत आदत में वो नहीं फंसे हैं, राइट, इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप पर्सन। समझ आया? ये है एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर को सब लोग ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये सारा चीज दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें एक भी चीज फिक्शन नहीं है, सब रियल है, सब रिसर्च बेस्ड है, कुछ ना कुछ प्रूव किया गया है, राइट। तो ये चीज सब लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट ग्रुप मेंबर कौन है, चैप्टर 6 कौन प्रेजेंट करने वाले हैं? अजीत, पूजा, विशाल, तीनों में से कोई है यहाँ पे? तीनों में से एक भी बच्चा या नहीं है?
Ma'am, roll number 10 is present. तो मैम कैमरा ऑन है। 20 is also present मैम, 20 तो कैमरा ऑफ है, ऑन है। 20 का on 17 मैम। कहा। तो अब ये इम्प्लीमेंट होगा। आप लोग को अब बोलने का असर नहीं हो रहा है, आप लोग मजबूर किए कि अब इम्प्लीमेंट हो। जिनका ऑन था वो मैं ऑब्जर्व की हूँ और रोल नंबर लिखूँ। अब आप आराम से मैम बैकग्राउंड में प्रॉब्लम था इसलिए ऑफ रखे थे कैमरा। बैकग्राउंड के प्रॉब्लम का रिजॉल्व करने के लिए आपके पास वर्चुअल बैकग्राउंड है। हर क्लास में मैम ऑन ही रहता है। हर क्लास में देखने जाऊंगी या अपना क्लास देखोगे? नहीं मैम, आपके भी क्लास में। आज नहीं था ऑन? नो मैम। देन और मैं 2 बार बोल भी चुकी हूँ ऑन करिए ऑन करिए। तो जितने का ऑन है ऑन था स्टार्टिंग में मैम, फिर बैकग्राउंड में क्लास की वजह से डिस्टरबेंस होता है इसलिए करना नेक्स्ट पड़ा। क्लास से ऑन रखिएगा तो शायद आप अभी मैम ठीक ठाक कर पाए। मार्क्स तो 1 3 मार्क्स मैं 7 दूंगी। 7 अदिति, 8 आकृति। आकृति फॉर कॉन्फिडेंस एंड बट वो रीडिंग ज्यादा था इसीलिए कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क है। डे बाय डे होता जा रहा है मैम, क्या? डे बाय डे मार्क्स कम होते जा रहा है। मार्क्स कम हो जाता है। पहला तो बस वो स्पिरिट के लिए मार्क्स मिला है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन था वो इतना जल्दी टेकअप किया चैलेंज, जैसा कर रहे हैं वैसा मार्क्स मिल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि किसी से दुश्मनी मिल रहा है तो कम होते जा रहा है। Ma'am, ओ मैम, ma'am, नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा? presentation है? नेक्स्ट ग्रुप तो यही अजीत है, पूजा है और विशाल है। चैप्टर 6 करेंगे आप लोग। तीनों में से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके बाद शायद मेरा है। मैम मैम शायद विशाल प्रेजेंट है। कौन? विशाल प्रेजेंट है मैम। विशाल बोल क्यों नहीं रहा है? विशाल बट अजीत नहीं है मैम। कोऑर्डिनेट करिए। विशाल कैन यू हियर मी? यस अजीत यस के घर मैम। में शादी है। क्या चीज? अजीत के घर में शादी चल रहा है, उसी कारण से वो क्लास नहीं कर रहा है मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आदित्य आप प्रेजेंट करेंगे। चैप्टर 7 है ना आपका? मैम, हमको कोई असाइन नहीं किया गया है कौन सा चैप्टर करना है। नहीं असाइन किया गया तो चैप्टर 6 आप कर लीजिए। और उसका कंटेंट? कंटेंट पीडीएफ तो है ही ना आपके पास। तो ठीक है मैम, अरेंज कर लेंगे। मैम PDF है ग्रुप कि में नहीं और है? कौन है आदित्य के साथ? ग्रुप पे मैं भेजी थी कि नहीं? आदित्य है, अनुराग है और विभा है। विभा भी यहाँ प्रेजेंट है, अनुराग है यहाँ पे। मैम अनुराग मैं और पीडीएफ आप लोग के पास नहीं है? मैम मैं किस ग्रुप में हूँ मुझे पता ही नहीं है। अभिषेक देखो ग्रुप में तो मैसेज था। ग्रुप के पीडीएफ नहीं है, मैं पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। किसको? अभिषेक को अपना ग्रुप नहीं पता? अभिषेक जस्ट नेक्स्ट वाला ग्रुप है, अभिषेक, आयुषी और सरोज। मैम सरोज तो क्लास ही नहीं करता है ना। और आयुषी मैम रिस्पॉन्डेंट नहीं है वो भी, चेंज करना पड़ेगा ग्रुप। आयुषी यस मैम। आयुषी है यहाँ पे। मैम सरोज तो नहीं है ना, और किसी को इंक्लूड कर दो। और ले लीजिए जो भी ग्रुप चाहिए आपको, ग्रुप मेंबर बात करके इंक्लूड कर सकते हैं आप। जो किसी ग्रुप में नहीं है वो जा सकते हैं आप। ठीक है, आप आदित्य आप लोग चैप्टर 6 पे तैयार करिए। ओके मैम। ठीक है, मैम चलिए थैंक यू। पीडीएफ भेज देती हूँ मैम। थैंक यू मैम।